Hello students. So in this video we are going to see the physiology of digestion. In the physiology of digestion we are going to see the how the process are carried out for the simplification of the food which we are taking. मतलब कैसे वो फूड जो है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन होता है एंड ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस फिजियोलॉजी. यस. सो कोई भी जो भी हम खाना खा रहे हैं, सो मेन पर्पस ऑफ आवर बॉडी इज टू यूज वॉट एवर द मटीरियल यूजफुल मटीरियल वी हैव. यस. जितना भी यूजफुल मटीरियल है वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है, और जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट होकर बाहर निकलता है. यस. सो इन द अगर हम नॉर्मल अगर वे देखते हैं कि हाउ दिस इज टेकिंग प्लेस, तो हमने डिस्कस किया कि वी हैव सीन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट all the process as we the mouth is taking the food, and from the mouth it goes into the pharynx part, and in the pharynx part there is a common pathway for the एयर एंड फूड. whereas during the time of जब हम खाना खा रहे हैं, at the time of swallowing, जब हम कोई चीज़ को निगलते हैं अपने गले में, तो उस समय क्या होता है, इट इज़ द epiglottis. epiglottis इज़ द पार्ट विच गेट, उसको फ्लैप की तरह होता है जो एक पाथवे प्रोवाइड करता है दैट द फूड विल गोज इनटू ओनली इन दिस esophagus part. Yes. After the it is the esophagus is a tube like structure where the food material go slow down in the downward direction in the stomach. Yes. In the stomach you will see कि यहाँ this is the J shape like organ which is placed downward, or it is on the slightly लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी. उसके राइट साइड में आपको क्या दिखेगा, लीवर दिखेगा. वंस द food enter into the stomach, there is a sphincter like structure is there, that is called as the sphincter, जो आपके फूड को ऊपर नहीं आने देता है. then there is a, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, there is a क्रंचिंग. आपके जो फूड है उसको क्रंच करने के लिए देयर इज आपको यहाँ पे रेगेस दिखेंगे जो उसको क्रंच करते हैं. फूड आपके जो भी फूड है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो हियर द जो मसल्स है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी. देन आफ्टर दैट द हियर ऑल्सो sphincter is present. That sphincter is called as the pyrolic sphincter. So this from this pyrolic sphincter the food will goes into the small intestine. The duodenum is the starting of this small intestine. Once it goes into the small intestine, then from this duodenum where all this bile juice, pancreatic juice where goes into this duodenum part. Yes. यहाँ पे आप देखेंगे this is the liver, here the gallbladder, then here from here the common bile duct आएगा, और उसके बाद यहाँ से आपको pancreatic duct मिलेगा. ये दोनों common जो है यहाँ पे आएंगे, that is called as the hepatopancreatic duct. यहाँ पे open होगा in the duodenum, where from the duodenum the जो फूड है then it is called as chyme. then it goes into the small intestine where small intestine में duodenum के बाद it will goes into the ileum, and jejunum ileum में जाने के बाद it will goes into the large intestine. large intestine के part first is the cecum, then it goes into this colon part, then from this colon part it goes into the rectum जहाँ पे क्या हो रहा है, storage of waste material होता है, and after a particular time it will excrete from our body. So in this way the whole digestive system is work. Now during that we will see कि हमने देखा कि we had discussed about this digestive glands के बारे में हमने discuss किया. we have discussed about the role of liver, we have discussed about the role of this pancreas, then we have discussed about the role of the salivary gland. Yes. So
In this video we are going to discuss about the physiology of digestion, मतलब during the time of digestion जो भी हम खाना खा रहे हैं, so how the food is get digested. Yes, so as we know कि जो food जो है हमारे माउथ से ही क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है. जैसे ही हमारा माउथ में फूड आता है, so मैक्सिमम जो काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका मैक्सिमम जो है डिग्रेडेशन कहाँ हो जाता है, 30% ऑफ द डिग्रेडेशन इज हैपन इन द माउथ. यस, अब जो हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन कैन बी डन इन बोथ द प्रोसेस, मीन्स इट कैन बी डन एज बायोलॉजिकली और बायोकेमिकल मेथड्स, जहाँ पे हम देखेंगे वेरियस केमिकल्स और वेरियस एंजाइम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो डन बाय मैकेनिकल अगर हम बात करते तो इट कैन बी बाय द च्यूइंग मेथड, जो हम खाना खा रहे हैं. यस, सो एट द टाइम ऑफ च्यूइंग जो हमारे दांत जो है उसको च्यूइंग का काम करते हैं, उसको जो फूड है उसको स्मॉलर पार्ट में क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं. तो फर्स्ट द डाइजेशन, इट मे बी ऑफ टू टाइप के डाइजेशन हो सकता है. इट कैन बी मैकेनिकल और इट मे बी बायोकेमिकल. Yes, बायोकेमिकल मेथड. सो इन द मैकेनिकल पार्ट अगर हम बात करते हैं तो टीथ हमारा जो है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर आप देखेंगे जो क्रंचिंग होता है हमारे स्टमक में, क्रंचिंग इन स्टमक. यस, एंड जो मूवमेंट होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट मीन्स जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईसोफेगस. जो ईसोफेगस है वो जो फूड नीचे जा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो फूड है जो ईसोफेगस है, इट इज़ नॉट अ लाइक कि एक पाइप की तरह है और आपने उसमें कुछ चीज़ डाली तो डायरेक्ट वो नीचे गिरेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आप देखेंगे तो ईसोफेगस है नॉर्मल कंडीशन में इट इज़ लाइक ये इस तरह से रहेगा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब हमारा फूड हम स्वॉलो करते हैं नीचे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोल, तो ये जो है ये धीरे धीरे अपनी स्पेस बनाता है. मीन्स अगर आप देखेंगे वो अपना स्पेस बना के वो नीचे सरकता जाएगा. यस, मतलब तब जाके ये ईसोफेगस क्या है अपनी जगह, उसको वो जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर है वो उसके बाद वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा. यस, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक कि सीधा ऐसा पाइप नहीं है कि आपने कोई चीज़ ऊपर से डाली और डायरेक्ट वो नीचे आई. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ कि हाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज द पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जहाँ पे आप देखेंगे कि वन बाय वन धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण द फूड विल गोज डाउन. यस, धीरे धीरे वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा. ड्यूरिंग जैसे वो नीचे जा रहा है जब वो स्टमक में जा रहा है, सो ड्यूरिंग द स्टमक, यहाँ पे ये स्टमक है, दिस इज द स्टमक. अब ये जो स्टमक में आप देख रहे हैं, यू विल सी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी फोल्ड्स दिखाई देंगी. दैट फोल्ड विल ऑल्सो हेल्प फॉर द क्रंचिंग ऑफ फूड. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रंचिंग ऑफ फूड हो रहा है. यस, एंड हियर जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट आपको यहाँ ईसोफेगस में दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हमारा जो फूड है उसको स्वॉलो करना और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने में देर इज ऑल्सो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सो दिस इज द मैकेनिकल वे हो गया. नाउ केमिकली जो होगा इट इज बाय ब्रेक डाउन, दैट इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन. यस, ब्रेक डाउन मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा, वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स. हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं. वी आर टेकिंग प्रोटीन्स, वी आर टेकिंग फैट्स. यस, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ स्टार्ट हो जाता है, ये जैसे ही हमारे फूड मुंह में आता है वहीं पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हो गया जो हम
मेनली किसके थ्रू खाते हैं, राइस के थ्रू। अब स्टार्च क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीमर। अब ये पॉलीमर क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट। यस, बहुत सारी मोनोमर यूनिट की जो चेन होती है दैट यू कॉल्ड एज अ पॉलीमर। यस, अब ये जो मोनोमर यूनिट है इट इज़ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पॉलीमर बना लेता है देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। यस, अब यहाँ पे दिस आर द मोनोमर यूनिट, दिस आर द मोनोमर यूनिट। नाउ दिस कार्बोहाइड्रेट इट गेट स्टार्ट डाइजेशन। वो जैसे ही हमारे मुंह में स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारे मुंह में आएगा वहीं पे क्या होगा, देर इज़ अ क्या होगा, सबसे पहले च्युइंग होगा। च्युइंग होगा मतलब हम चबाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही फूड को हम चबाना स्टार्ट करेंगे हमारा वहाँ पे टीथ जो है, हमारा जो टंग है, यस दे आर, ये हमारे जो च्युइंग की प्रोसेस है उसको हेल्प करेगा। यस, सबसे पहले हमारा फूड कहाँ जाएगा, सबसे पहले फूड हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी। यस, जो हम हमारा मुंह, यस, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द बकल कैविटी। जैसे ही बकल कैविटी में आया एक्सक्यूज मी, सो वहाँ पे टीथ एंड हमारा जो टंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यस, एज वी सी कि हमने देखा था कि जो हमारा माउथ है इट अपर पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज पैलेट, लोअर पार्ट में क्या रहता है इट इज़ द टंग, एंड दो साइड में क्या रहता है इट इज़ द चिक्स। यस, सो इन चारों तरफ से क्या मिल रहा है, फूड जो है उसको एक चैम्बर की तरह एक आप बोल सकते हो हमने वो फूड को डाल दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टंग एंड पैलेट जो है हमारा फूड क्या हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ द टीथ, जो टीथ है हमारे प्रेजेंट, ये टीथ के हेल्प से क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। एंड ब्रेक डाउन के बाद वहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम दिस टंग will help to break down of the food, and here the mixing of the food with the saliva is taking place. Yes, so food mixed with saliva. Yes, so here what is, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा जो फूड है उसको लुब्रिकेशन मिल रहा है। लुब्रिकेशन इन द सेंस आप उसको बोल सकते हो कि एक तरह से चिपचिपाहट जो बोलते हैं, विस्कसनेस जो होती है वो हमारे फूड को मिलती है, ताकि वो इजीली क्या हो, हम अपने गले से नीचे डाल सकें उसे। यस, सो हियर इसीलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम जो है सलाइवा जो है हमारी बॉडी, हमारे जो माउथ में वो रिलीज होता है माउथ, तो एट द टाइम ऑफ हम खाते वक्त हमें खाना धीरे धीरे और चबा के खाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से मैक्सिमम क्या हो, जो ब्रेक डाउन का काम कहाँ हो जाए, माउथ में हो जाए। एक बार ये ब्रेक डाउन का काम हमारे माउथ में हो गया, सो रिमेनिंग जो काम रहता है इट इज़ ऑफ द, ये कौन सा काम रह जाता है, अगर हमारा मैकेनिकल वर्क हो जाता है, सो नेक्स्ट कौन सा काम रह जाता है, इट इज़ ओनली द बायोकेमिकल मेथड, जिसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट उसमें जूसेस, बाइल जूस, डिफरेंट जूसेस, उसका एक्टिविटी फिर स्टार्ट होता है। सो इसीलिए मेन जो काम है, जो टिथ का काम है, जहाँ पे आपका ब्रेक डाउन का काम है, वो सबसे पहले कहाँ हो जाना चाहिए, इट इज़ वो माउथ में हो जाना चाहिए, जहाँ पे सलाइवा उसके साथ इजीली मिक्स हो जाएगा। नाउ दिस फूड पार्टिकल जब उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड एज बोलस, देन इट इज़ कॉल्ड एज बोलस। नाउ जो हम बोल रहे हैं कि फूड हमने खाया, सो दैट फूड इट इज़ नाउ इट गेट डिग्रेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट mix with saliva that you called as the bolus, and this bolus is swallowed. Yes, ये हमारे क्या होगा, नीचे फिर ये सॉलो होके नीचे आ जाएगा। यस, ईसोफेगस में। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सो देयर आर वेरियस electrolytes are present, there are different enzymes are present in the saliva, like amylase. This is the enzyme which is present mainly in the saliva. Yes,
इट क्या, ये क्या करता है, जो स्टार्च है उसको क्या करेगा, इट डिग्रेड इनटू माल्टोज। मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो पॉलीमर है, जो स्टार्च है, उसको उन्होंने किस में डिग्रेड किया, मोनोमर में, या फिर हम बोल सकते हैं इट इट कैन ऑल्सो, जो जो स्टार्च है, जो पॉलीसेकेराइड्स है, जो पॉलीमर है, उसको वो किस में डिग्रेड करेगा, इट विल डिग्रेड इनटू माल्टोज। इट विल डिग्रेड इनटू माल्टोज। माल्टोज जो है इट इज द डाइसेकेराइड, मतलब दो शुगर यूनिट से बना हुआ। यस, सो हियर मतलब क्या हुआ, जो भी कार्बोहाइड्रेट था उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया है, वो माउथ में ही स्टार्ट हो गया। हियर द कार्बोहाइड्रेट गेट जो डिग्रेड हुआ, इट डिग्रेडेड इनटू द डाइसेकेराइड्स में वो डिग्रेड हुआ है, मीन्स पॉलीसेकेराइड, इट डिग्रेड इनटू डाइसेकेराइड्स। यस, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस, जो हमारा बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन। यस, नाउ सलाइवा ऑल्सो, अगर हम सलाइवा की बात किए तो वी आर टॉकिंग अबाउट सलाइवा। हमने देखा सलाइवा में अमाइलेज प्रेजेंट है। हियर ऑल्सो अनदर एंजाइम इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा, जो हेल्प करता है फॉर द इट हैज़ द एंटीबैक्टीरियल, या आप बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करने की उसमें ताकत होती है। मीन्स इट हैज़ द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इट हैज़ द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिग्रेड, और वो किसको, बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, मार सकता है। यस, उसको वो मार सकता है। दिस लाइसोजाइम, दिस लाइसोजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स। जो हमारे आंसू होते हैं इसमें भी जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। यस, नाउ अब ये सारा प्रोसेस हो गया। नाउ द फूड विल गोज इनटू द esophagus. Now it is goes into the esophagus, and once it goes into the esophagus, now उसके बाद इट विल गोज, धीरे धीरे द पेरिस्टालिक मूवमेंट होगा, धीरे धीरे जो बोलस है, नाउ इट गोज इनटू द स्टमक पार्ट। कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। वंस इट गोज इनटू द स्टमक, द स्प्रिंचर उसमें प्रेजेंट था, इट विल नॉट अलाउ द फूड टू गो आउटसाइड। यस, वो ऊपर की तरफ या अप साइड या ऊपर की तरफ उसको आने नहीं देगा, वो फूड उसको स्टमक में ही वो रखेगा। वंस द फूड गोज इनटू द स्टमक, एक बार वो स्टमक में चला गया, देन इन द स्टमक सबसे पहले क्या होगा, क्रंचिंग ऑफ फूड विद दिस मसल सेल्स में जो प्रेजेंट है, उसमें क्रंचिंग ऑफ जो फूड है वो स्टार्ट हो जाएगा। Once the crunching of food is done, here various digestive enzymes or glands are present in the stomach which are releases various types of, उसमें आपका देखेंगे कि different types of juices उसमें release होंगे in the stomach. Yes. Once the food goes into this stomach, this crunching starts, and in the crunching जो हो रहा है, here the gastric juice जो है उसके साथ क्या होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे। yes, crunching होगा means mixing of food होते जाएगा, breakdown of food particles होते जाएगा, and here the mixing of gastric juice is taking place. गैस्ट्रिक जूस जो है उसके साथ मिक्स होते जाएगा। यस, एंड इन द म्यूकस, हियर द स्टमक इज लाइंड बाय, जो स्टमक है हमारा, इट इज सराउंडेड बाय और इट इज लाइंड बाय म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर आप बोल सकते हैं, विस्कस लेयर एक चिपचिपी लेयर है जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द वेरियस, जो आप देखेंगे इतना ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक में होता है। सो हाउ दिस स्टमक, जो हम इतनी सब चीज़ें खा सकते हैं, वी आर टेकिंग वेज, वी आर टेकिंग नॉन वेज, ये सब चीज़ों को वो जब डाइजेस्ट कर सकता है, सो दैट स्टमक
itself हैव द कैपेसिटी कि वो अगर जब इतना हम अगर आप नॉनवेज की अगर बात करते हैं वी आर टेकिंग, अगर आप बहुत नॉनवेज खा रहे हैं सो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सो एट दैट टाइम आप जब वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो सकती हैं तो क्यों नहीं ये स्टमक खुद डाइजेस्ट हो जाता है. यस, सो इट इज़ बिकॉज कि गैस जो हमारा जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है इट इज़ ऑफ म्यूकस लेयर. this mucus layer is protected the stomach from the action of this various acid which is produced in our stomach. so main जो acid है that is the HCl. yes, it is very much acidic रहता है. ये एसिड है, ये हमारी जो फूड जो भी हम खा रहे हैं उसको हेल्प करता है फॉर द कि एसिडिक कंडीशन बनाता है, ताकि क्या हो, जो भी हमने खाना खाया हो उसमें कुछ अगर जो बैक्टीरियाज या कुछ अनवांटेड मटेरियल अगर है, कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो इन दैट एसिडिक कंडीशन इट मे गेट, वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इट मे गेट डाई. यस, सो हियर जो आपका दिस म्यूकस लेयर जो है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंटिंग अवर स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ दिस HCl. यस, एंड हियर दिस म्यूकस जो लेयर है, द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक हैज़ दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड. इट हैज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड उसमें प्रेजेंट है, and this gland they are producing different types of cells वो produce करते हैं, वो secrete करते हैं, that called as mucus cell or that you called as the peptic cell and oxynectic cell. so the mucus cell का क्या काम होता है, इट सिक्रीट्स द म्यूकस. यस, पेप्टिक सेल्स क्या करते हैं, इट विल सिक्रेट द प्रोएंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन. अब ये क्या होता है, पेप्टिक सेल क्या रिलीज कर रहा है, दे आर रिलीजिंग द प्रोएंजाइम पेप्टिनोजन. अब ये क्या होता है, प्रोएंजाइम कोई भी एंजाइम है, जब हम खाना खाते हैं तभी हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है. यस, सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, जो भी एंजाइम रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, एंड आफ्टर द जैसे उनको स्टिमुलेशन मिलता है इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. यस, सो पहले कैसे एंजाइम्स थे, दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म, नाउ दे बिकम एक्टिव. जैसे हमारे फूड हमारे बॉडी में आया, हमारा फूड वापस हमारे स्टमक में आया, नाउ दिस इनएक्टिव एंजाइम दे कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म. यस, अगर ऐसा हो, अगर ये ऑल टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो ऑल टाइम हमें बहुत भूख लगती, या ऐसा होता कि कंटिन्यू हमारे बॉडी में ये प्रोसेस होती रहती, बट इट इज़ नॉट, ये नहीं होता है. once the action of these enzyme is over, they easily converted into inactive form. Yes, so here this proenzymes आप बोल सकते हैं they are the inactive enzymes. Yes, these are the inactive enzymes, and after the activation they converted into active form. Yes, so here this pepsinogen which is an inactive enzyme, in the आफ्टर द एक्शन ऑफ दिस HCl, जहाँ पे क्या हुआ हमारी बॉडी में HCl रिलीज हुआ, एट दिस जैसे ही HCl रिलीज होता है आवर स्टमक हैव बिकम एसिडिक इन नेचर, और उसके कारण जो एसिड हम देखते हैं, एसिडिक pH कब होता है, इट इज़ बिलो द 7 pH के अगर नीचे रहा, सो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक. सो नाउ द pH ऑफ आवर जो स्टमक है इट बिकम 1.2 to 1.8 हमारा pH हो जाता है. सो एट दैट pH क्या होता है, दिस एंजाइम्स द पेप्सिनोजन, it is the proenzyme, it is the inactive enzyme, in this acidic condition it get converted into the active enzyme. Yes, ये इसका अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है. नाउ व्हेन द जो जैसे ही एंजाइम एक्ट हो जाता है, नाउ इट विल स्टार्ट टू डिग्रेड प्रोटीन्स.
सो क्या होगा, जो प्रोटीन है वो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, अब नाउ द प्रोटीन स्टार्ट टू डिग्रेड, वो धीरे धीरे वो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। यस, सो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था विच इज प्रेजेंट इन दिस म्यूकस लेयर ऑफ द स्टमक, it will release three types of cell, that is the mucus cell which releases the mucus, peptic cell which releases the proenzyme, that is the pepsinogen. What is the role of this pepsinogen? It is an inactive enzyme in this acidic condition. This proenzyme or the pepsinogen converted into active form, and it start the degradation of the protein. Yes, so this is the role of this peptic cells. Yes, now what is the role of this oxygenatic cell? This oxygenatic cell, they have this oxygenatic cell, or it is also called as the parietal cell. So this cell has the capacity to release or secrete this HCl. These cells have to help in the secretion of this HCl, and it also have the capacity to secrete some vitamins. It have the capacity to release some vitamins and some intrinsic factor which help in absorption of food, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये विटामिन B12 को भी रिलीज करेगा। ये B12 क्या करता है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल। जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। सो ऑल दिस विटामिन को कौन रिलीज कर रहा है, इट इज़ द ऑक्सीनेक्टिक सेल जो है वो रिलीज कर रहे हैं। इट विल रिलीज दिस HCl and it also releases some intrinsic factor which is essential for the absorption of this B12। विटामिन B12 के लिए जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंट्रेंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है वो कौन रिलीज करता है, इट इज़ द ऑक्सीनेटिक सेल जो है वो रिलीज करते हैं। सो हियर द म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल एंड ऑक्सीनेटिक सेल, दे आर हेल्प इन further digestion of the food। here the protein का जो digestion है यहाँ stomach में वो क्या हो जाएगा, start हो जाएगा। yes, now the protein get protein in the presence of this pepsin enzyme, जो pepsin enzyme था उसके presence में now it break down into peptones and proteases, इसमें वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, नाउ वन थिंग दैट रेनिन, ये अभी तक हम अपना पूरा प्रोसेस देखा। अब नाउ दिस रेनिन इज ऑल्सो फाइंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम क्या खाते हैं, दे आर ईटिंग और दे आर टेकिंग ओनली मिल्क। यस, सो इन दैट मिल्क द जो द रेनिन इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, और ये जो है इट एक्ट एज अ कैजिन। दिस कैजिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इट ब्रिंग अबाउट, जो कैजिन है जो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो बच्चे हैं वो दूध पी रहे हैं तो दूध कई बार कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वो हमेशा वो दूध को वोमिट करते रहते हैं। सो हियर समटाइम्स दैट द रेनिन इज नॉट प्रेजेंट इन देम। यस, सो दिस रेनिन इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट, सो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ दिस, जो इट इज़ हेल्प करता है वो जो भी मिल्क ले रहा है उसको डाइजेस्ट करने में। यस, इट इज़ फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट एंड इट एक्ट ऑन कैजिन। ये जो कैजिन है ये प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, एंड दिस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है उसको आप बोल सकते डिग्रेड करना है, या फिर उसको का काम कौन कर रहा है, इट इज़ द रेनिन। यस, सो इट कोआगुलेट, वो उसको कोआगुलेट करता है, मतलब उसको जो दूध है उसको क्या करेगा, उसको धीरे ब्रेक डाउन करेगा, कोआगुलेट करेगा, एंड इट आफ्टर कोआगुलेशन इट इज़ फर्दर, उसके बाद उसका डाइजेशन कौन करेगा, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्सिन, वो फिर से वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। यस, दिस रेनिन इज एब्सेंट इन द
एडल्ट्स में एब्सेंट होता है मोस्टली, एंड इट इज़ फाउंड मेनली इन द इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। एंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ दिस कैजिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, एंड आफ्टर दिस डाइजेशन ऑफ दिस कैजिन देर इज अ कोagulation ऑफ मिल्क इज टेकिंग प्लेस। कर्ड की तरह, जैसे मिल्क को फटने के बाद वो किस तरह से बन जाता है, लाइकवाइज आफ्टर दैट इट कर्डलिंग ऑफ मिल्क वो करेगा, उसके बाद इट विल हेल्प उसका डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्सिन ऑल्सो इज टेकिंग प्लेस, एंड इट इज एब्सेंट इन द अडल्ट। यस, एंड आफ्टर ये हमने एक्स्ट्रा ये हमने देखा ड्यूरिंग द ये इन्फेंट की बात हमने की। यस, सो सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन आफ्टर द esophagus the food goes into the stomach में this mucus layer, it has the gastric glands. These glands have the three types of cells: mucus cell, peptic cell, and oxynectic cell. The mucus cell produce the mucus, peptic cell produce this coenzyme, that is the pepsinogen, which and this oxynectic cell they produce this HCl and all the other factors that the intrinsic factors को release करता है for the absorption of this vitamin B12. Yes, so all these process, after all this process क्या हुआ, now the end of this क्या हुआ, सारी पिक्चर का एंड क्या हुआ, here the food is converted into एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो फूड हमने खाया now it converted into a semi solid, and that semi solid it is called as chyme. It is called as chyme या काइम, जो भी आपको बोलना है। यस, सो हियर द बोलस, जो हमने बोला था कि जब जैसे ही हमारे मुंह में निवाला खाया, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू बोलस, एंड नाउ व्हेन दिस बोलस goes into the stomach it get converted into semi solid type of food, and it is called as chyme. Yes, now the chyme from the stomach it push ये कहाँ जाएगा, now this chyme is goes into the small intestine, that is the part called as the duodenum part में ये जाएगा। Yes, now after the duodenum, that is the small intestine का part start होगा, and in the small intestine the action of the intestinal juice, bile juice, pancreatic juice, this is mixed with this chyme. Yes, so that part we'll take in the next video. So hope you understand till now कि digestion जो हुआ, till we have discussed कि digestion in the buccal cavity and digestion in the stomach part we have discussed, and now the food will go into the small intestine, and in the small intestine it will, the action of the various enzymes is taking place, वो हम अब next इसमें देखेंगे। Yes, so see you in the next video. Goodbye.